Hello everyone, welcome back to our channel. So in the previous lecture we have discussed about instantaneous power and average power. So what we have got for instantaneous power, we denote instantaneous power with small p and this p is function of time as half Vm cos of theta v minus theta I plus half Vm cos of 2 omega t plus theta v plus theta I. This is the constant part of instantaneous power and this is the time dependent part, and the frequency of this is 2 omega. Since pt is time dependent and power changes with time, so it is difficult to measure it. Hence we go for a power which is more convenient to measure, that is average power. We have already done it. So average power, we denote it with capital P, and this we have got half Vm cos of theta v minus theta I. See, this is time independent, yes or no? So this is more convenient to measure. Okay, and this cos theta v minus theta I is what? Power factor angle. Now let us do some problems so that we have a clear concept. See, I'm taking, this is a sinusoidal source, okay, and this is passive linear network. Here IT is flowing and this source is providing voltage Vt. See, the question is, if Vt is given as 330 cos of 10t plus 20 degree and IT is equals to 33 sine of 10t plus 60 degree, then we have to calculate its average power and instantaneous power. So now हमें formulas तो पता है, चलो solve करके देखते हैं. See, तो सबसे पहले average power निकाल लेते हैं. P average will be what? Simply half Vm Im cos of theta v minus theta I. This is the formula of average power. But now see here, this voltage is in the form of cosine and this current is in the form of sine. So we have to change this IT into cosine form. So we know that what cos omega t plus minus 90 degree gives minus plus sine omega t. Means if we have to convert this plus sine omega t into cos omega t, then we have to minus 90 degree from its angle. Means this will be 33 cos of 10t plus 60 minus 90. So 33 cos 10t minus 30 degree. So we have got the voltage and current in same form, means both are in cosine form. Now let's calculate average power. So average power will be half Vm is what? This is Vm. C, जब भी कोई टाइम डोमेन में दी गई हो साइनोसॉइड, तो वो उसे हम लोग पीक वैल्यू ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये पीक वैल्यू ही दिया रहता है जनरली हर जगह. अगर कहीं भी टाइम डोमेन में है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पीक वैल्यू होती है. सो दिस विल बी 330 into 33 cos of theta v is what? 20 degree minus theta I, what we have calculated? 30 degree minus 30 degree. So half into 330 into 30 cos of 50 degree. If you calculate this, you will get what? 3.5 kilowatt. Okay, now let's talk about instantaneous power. See, instantaneous power, the first term of instantaneous power is what? This constant term is this term is nothing but the average term, yes or no? Means P average plus this
time dependent term. So we have already got this constant term. So pt will be, first I have to write down the formula, half Vm into Im cos of theta v minus theta I, and plus half Vm into Im cos of 2 omega t plus theta v plus theta I. Yes or no? What is the value of this? This is 3.5 kilowatt. And if you calculate this, half into 330 into 33 into cos 2 omega t means here the frequency of this voltage and current is what, 10t. So 10t, so this will be 2 omega t. मैंने ये बताया था कि हम लोग फ्रीक्वेंसी सेम क्यों लेते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं लेंगे तो बाय रूल ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटीग्रेशन ओवर इट्स टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ओके चलो ठीक है, अब इस पे आते हैं. सो 2 ओमेगा टी मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री, एंड प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई मीन्स 20 माइनस 30 means 20t, and this will be 20 minus 30 degree. Yes or no? So overall our instantaneous power will be, this will come out to be 5.445 cos of 20t minus 10 degree kilowatt. So we have calculated the value of what, instantaneous power and average power. एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं. इस बार मैंने कुछ चेंजेस किए हैं. देखो मैंने ये सेकंड क्वेश्चन है, मैंने वी फेजर लिया. वी फेजर इज 80 angle 60 degree, and I have taken Z as, Z is the what, load impedance. So it is 25 root 3 plus 25 I. Now we have to calculate what, P average of this question. Okay, so how we will calculate P average? See, we know P average is also equals to, हमने दो फार्मूला निकाली थी P एवरेज की. एक तो हाफ वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, एंड इसे हमने 2 को जब ब्रेक किया था रूट टू में, तो वी हैव गॉट इट व्हाट, वी हैव गॉट वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई. यस और नो? मीन्स अगर हमने यहाँ से आई आर एम एस निकाल ली तो फिर क्या हो जाएगा, हमें पी एवरेज मिल जाएगी. अब देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, कहीं भी अगर क्वेश्चन में इस फेज़र डोमेन में अगर दी हुई हो कोई भी साइनोसॉइड या तो वोल्टेज या करंट फेज़र डोमेन में दी गई हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट दिस वैल्यू इज़ आरएमएस वैल्यू. टाइम डोमेन के टाइम पे मैंने क्या बताया था, वो पीक वैल्यू होती है ये जो होती है, और अगर फेज़र डोमेन में होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आरएमएस वैल्यू होगी. अगर आरएमएस वैल्यू नहीं होगा तो वो क्वेश्चन में डिफाइंड होगा कि दैट इज़ पीक वैल्यू. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट इट. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट आई फेज़र. सी Z विल बी वॉट, इसे हम लोग R एंगल थीटा में लिख सकते हैं ना, तो R क्या हो जाएगी हमारी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर, एंड एंगल क्या हो जाएगी हमारी, tan इनवर्स 25/25 रूट 3. इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट Z एज, आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट 50 एंगल 30 डिग्री. ओके, सो यहाँ से आई फेजर हमारी क्या मिलेगी. देखो मैंने बताया था कि डिवीजन के केस में जब हम लोग ये पोलर फॉर्म लेते हैं तो इजी पड़ता है हमें कैलकुलेट करना. तो 80 एंगल 60 एंड 50 एंगल 30 डिग्री. सो दिस विल कम आउट टू बी 1.6 एंगल 60 minus 30, that is 30 degree, that is ampere in ampere. Okay, so now this is what IRMS, and this is our VRMS. So we can directly write P average as, and we know the angle of voltage and we know the angle of current. So P average will be what, VRMS into IRMS cos theta V minus theta I means 80 into 1.6 cos of theta V is what, 60 degree and theta I is 30 degree. If you calculate this you will get what, 110.85 watt. तो ऐसे क्वेश्चंस प्लॉट होते हैं, बहुत टाइप से क्वेश्चन प्लॉट होते हैं. ये मैंने दो तरीका बताया आपको पी एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए. ओके, नाउ लेट अस
let us come to the topic apparent power. Okay, so write down apparent power. See, हमने एवरेज पावर क्या निकाली थी? वी हैव गॉट पी एवरेज एज हाफ वी एम आई एम कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई, यही मिली थी कि नहीं हमें पी एवरेज। और इसे हमने दूसरे तरीके से वी आर एम एस के टर्म में कैसे लिखा था? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। ये सुनो, ये हमारे दो पी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट हमने करी थी पिछले क्लास में। सो सी, दिस एपरेंट पावर इज, वी आर introducing a new power, that is this one, means S is VRMS into IRMS. We represent apparent power as S and we have assumed that this S is what? VRMS into IRMS. See, इसके नाम में ही ये, इसका नाम क्या है? apparent power. So apparent power is the power, first write down its definition. Apparent power is the product of the RMS values of voltage and current. यही है ना, वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये सब नो. सो सी, apparent power is assumed power, means हमने ये assume किया है, which we have assumed that this much power should be transferred from source to load. ये जो यहाँ पे cos दिस पावर फैक्टर की वजह से जो पी एवरेज हमारी कम हो जा रही थी, वो क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है, जैसे बाय कंसिडरिंग द एनालॉजी ऑफ डीसी रेजिस्टिव सर्किट. डीसी रेजिस्टिव सर्किट में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई करते हैं. तो इस एनालॉजी को यूज़ करके हमने ये अपरेंट पावर इंट्रोड्यूस किया है, और इसमें क्या बोला है कि this apparent power is nothing but equals to VRMS into IRMS, means that much power should be delivered from source to load, but there is some losses and this much power हम लोग नहीं उतना, मतलब मीन्स हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर पाते. चलो ये बात की बात है. अब यहाँ देखते हैं पावर फैक्टर यहाँ से क्या निकल के आ रही है. अगर आप देखोगे तो सी, पावर फैक्टर हमारी क्या थी? कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ये सब ना. अब देखो, अगर मैंने ये P को S से डिवाइड कर दिया, मीन्स P डिवाइडेड बाई S, सो वी गॉट, अगर मैंने डिवाइड किया तो वी आर एम एस आई आर एम एस कट डाउन हो जाएगा. सो दिस विल कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ये सब ना. सो पावर फैक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P बाई S भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और थीटा वी माइनस थीटा आई को हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस 5 लिखते हैं. सिंस this both power, this is this power is this power is average power and this power is what? Apparent power. Since both are the power, so इसकी जो पावर फैक्टर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है. सो पावर फैक्टर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एंड इसकी जो अपरेंट पावर की जो यूनिट होती है वो आप ध्यान रखना, VA होती है, वोल्ट एम्पियर्स. ओके, नाउ चलो अब देखते हैं कि इम्पिडेंस के टर्म में हम लोग पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं. ये तो एक हमने देखा कि पावर फैक्टर इज एवरेज पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर. उसके पहले हमने देखा था कि पावर फैक्टर इज व्हाट? कोसाइन ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ दिस एंगल, फेज एंगल ऑफ वोल्टेज एंड फेज एंगल ऑफ करंट, एंड बाय टेकिंग इट्स कोसाइन वी गेट व्हाट? पावर फैक्टर एंगल. नाउ इन सी, इम्पिडेंस हम क्या जानते हैं? Z, we denote impedance as Z, yes or no? And impedance, we know that this is nothing but, this is load impedance, and we know that this load impedance is ratio of phasor voltage to phasor current. Means what I have told, that this impedance, load impedance, is ratio of phasor voltage to phasor current. अब देखो, इसे आप ये लिख सकते हो, सॉरी, VM by IM एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई. और अगर इसे हमने आर एम एस के टर्म में लिखा तो कैसे लिखोगे? वी आर एम एस बाई रूट टू आई आर एम एस बाई रूट टू एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई.
मीन्स वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे कि ये जो इम्पिडेंस की जो एंगल होती है, हमारी जो एंगल निकल के आती है, वो नथिंग बट क्या होती है, पावर फैक्टर की एंगल होती है कि नहीं। ये जो फाई है पावर फैक्टर एंगल, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इम्पिडेंस एंगल। सो वी कैन डिफाइन power factor as power factor is the cosine angle of load impedance, yes or no? So write down, we can also define power factor as cosine angle of load impedance। अब देखो एक चीज़, ये जो पावर फैक्टर की रेंज होती है ना, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। मीन्स पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में ही वैरी करता है। अब ये देखो रेजिस्टेंस के केस में हमें क्या मिलता है, सिंपली जो पावर होती है वो V इंटू आई मिलती है। मीन्स जो ये थीटा, और रेजिस्टेंस के केस में क्या होती है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती है। जब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगी तो उसके बीच कोई एंगल डिफरेंस होगा, नहीं होगा। मीन्स थीटा वी माइनस थीटा आई इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के केस में ये, सॉरी रजिस्टर के केस में ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कॉस 0 इज नथिंग बट 1। सो पी एवरेज हमारी क्या निकल के आती है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये मैंने उस पिछले क्लास के मतलब पिछले क्लास में मैंने ये चीज़ करा रखी है, यस और नो। अब ये देखो, अगर मैंने थीटा वी माइनस थीटा आई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 90 लिया, इन केस ऑफ एल एन सी, एल के केस में क्या होती है, जो करंट जो होती है वो लैग करती है वोल्टेज से बाय हाउ मच, 90 डिग्री से। और कैपेसिटर के केस में करंट क्या करती है, लीड करती है वोल्टेज से बाय हाउ मच, 90 डिग्री से। तो इन केस में क्या होगा, एल के केस में थीटा वी माइनस थीटा आई, और थीटा वी माइनस थीटा आई, एल सी के केस में प्लस माइनस 90, यस और नो। सो जब प्लस माइनस 90 हुआ तो क्या होगा, तो हमने, अगर मैंने क्या लिया, कॉस ऑफ प्लस माइनस 90, ये जब भी आप प्लस माइनस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये 90 डिग्री है, मीन्स ये 0 आपको देगा। वैल्यू जो इसकी होगी वो क्या होगी, 0 होगी इसकी वैल्यू। दैट्स वाई नॉट वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी। पी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, पी एवरेज की वैल्यू जब एल एन सी के केस में क्या हो जाएगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू 0, दैट इज़ 0, यस और नो। यही तो हमें मिला था क्लास में, जो हमने पहले पढ़ा था कि पी एवरेज क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू 0। सो पी एवरेज क्या मिल जा रही थी, 0 हमें। ये जो प्लस माइनस 90 का जो फेज डिफरेंस होता है वो प्योरली इंडक्टर और प्योरली कैपेसिटर सर्किट के केस में होता है, ये सर नो। मीन्स प्योरली जब इंडक्टर सर्किट होता है तब जो हमारी फेज डिफरेंस आती है, मीन्स करंट लैग करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री से। और जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होती है तो हमारी जो करंट होती है वो लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री पे। बट वन थिंग से इन रियल लाइफ, दिस आइडियल थिंग और दिस प्योरली थिंग डजेंट एग्जिस्ट, ओके। सो मीन्स अगर हमने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करी, तो अगर इंडक्टर है तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होगी ही, जिस वजह से ये प्योरली इंडक्टर नहीं होगा। उसका जो फेज होगा, मीन्स ये जो पावर फैक्टर होगा, वो एग्जैक्ट कभी भी प्लस माइनस 90 नहीं आता। वो हम लोग थ्योरेटिकली दिखाने के लिए या बताने के लिए हम लोग ये प्योरली इंडक्टर और प्योरली चीज़ जो भी होती है, आइडियल चीज़, दैट इज़ लिमिटेड टू ओनली थ्योरी पार्ट, ओके। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लेक्स पावर इंट्रोड्यूस होगा, उसी में हमारी एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। सो राइट डाउन द टॉपिक कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर, इसी में लिख लो आप एक्टिव को हम लोग रियल पावर भी बोलते हैं, एक्टिव और रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर, ओके। सो एक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एसी लोड को कंसीडर करते हैं, मीन्स कंसिडरिंग, राइट डाउन, कंसिडरिंग एन एसी लोड।
मीन्स मैंने ये कोई लोड जेड है वो मैंने कंसीडर करी, इसमें जो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है वीटी और आईटी फ्लो कर रही है। ओके, इसे आप वी फेज़र भी बोल सकते हो और ये आई फेज़र, फेज़र डोमेन के टर्म में। तो वी फेज़र हमें क्या पता है, वी एम एंगल थीटा वी, और आई फेज़र वी हैव आई एम एंगल थीटा आई। सी जो हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर होती है उसे हम लोग क्या होता है बोल्ड एस से डिनोट करते हैं। जो देखो हमने जो एपरेंट पावर थी उसे भी हमने एस से डिनोट किया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स पावर को भी हम लोग एस से ही डिनोट करते हैं, बस ये थोड़ा बोल्ड में होता है। ओके, सो इससे हम लोग डिनोट करते हैं। सो सी complex power absorbed by the AC load is the product of voltage and complex conjugate of the current, is what I have just said that complex power जो होती है लोड के अक्रॉस वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ करंट। देखो हमारी जो ये निकल के आई थी, जो एवरेज पावर को क्या निकली थी, हाफ वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, यस सर नो। इसी को हमने कॉम्प्लेक्स डोमेन में रिप्रेजेंट किया। अब देखो अगर हमें कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट करना था तो अगर हम ये लेते हैं मीन्स वी एम एंगल थीटा वी और आई एम एंगल थीटा आई, इसे तो ये भी लिख सकते हो ना, इसे ही तो हमने एवरेज पावर निकाल के कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था। चलो वो बात की बात है। अब देखो अगर मैंने सिर्फ सिंपली आई लिया होता तो ये थीटा वी प्लस थीटा आई आता है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें उनका क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, एक न्यू टर्म डिफाइन किया, कॉम्प्लेक्स पावर, जिसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड कॉन्जुगेट ऑफ आई। ओके, ना इसे आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप इसे आरएमएस के फॉर्म में लिखोगे तो रूट टू ये कर दोगे, ये तो पीक में है अभी, तो ये आप डायरेक्टली वी आर एम एस फेज़र आई आर एम एस कॉन्जुगेट, ये मैंने फेज़र इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे वी आर एम एस के साथ एंगल इंक्लूडेड है। ओके, सो वी आर एम एस को अब क्या लिख सकते हो, फेज़र वी आर एम एस को वी आर एम एस एंगल थीटा वी, और आई आर एम एस फेज़र को क्या लिख सकते हो, आई आर एम एस एंगल थीटा आई। सो एस को हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई। अब ये देखो एंगल को हम लोग कॉम्प्लेक्स में कैसे तोड़ते हैं, इसे हम लोग मीन्स अगर आर एंगल थीटा होता है ये पोलर फॉर्म, इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई, यस और नो, या फिर एंगल ही सिर्फ एक एंगल है, यस हाँ ये यही मानो, मतलब मीन्स पोलर टू रेक्टेंगुलर चेंज हो रहा है। चलो देखो अब आप पोलर टू रेक्टेंगुलर नो, सी एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सॉरी मैंने ये गलती कर दी थी, एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो अब इस एंगल को हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमें क्या मिलेगी नई टर्म, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा प्लस आई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन थीटा। So these two terms are now introduced in complex power. So complex power have this is what the real part of complex power, and this is the imaginary part of complex power. See, so जो real part of complex power is known as active or real power. So active or real power is what, real part of this complex power. This is active और रियल पावर। इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा। और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर होती है वो क्या होती है, रिएक्टिव पावर, और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन थीटा।
ये तो हुआ हमने जो टाइम डोमेन में लिखा, मीन्स सॉरी थीटा के फॉर्म में लिखा। अब इससे देखते हैं कि इम्पिडेंस से हम लोग कैसे ब्रेक डाउन करके हम लोग एक और फॉर्मूला निकल के आता है एक्टिव और रियल पावर का। तो चलो अब वो देखते हैं। सी वन थिंग, magnitude of complex power and what and apparent power is same। इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगी ना वो सेम आएगी हमारे पास। ओके, क्योंकि देखो उस केस में एपरेंट पावर के केस में हमने क्या लिया था, सिंपली वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस लिया था। यहाँ पे भी जो है कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स और जो एपरेंट पावर होगी वो सेम होगी। सो कॉम्प्लेक्स पावर की जो यूनिट होगी वो भी क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर होगी। एंड वन मोर थिंग, एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर इज पावर फैक्टर एंगल वी आर गेटिंग or not, means this angle is what, is nothing but power factor angle, yes or no? Okay, now write down VRMS phasor. We have got, we can write it as this, yes or no? So S को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी Z इंटू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड फेजर। सी जेड फेजर मीन्स जेड एंगल थीटा, और जो इसकी जो एंगल होती है वो तो यही होती है ना, पावर फैक्टर की एंगल, है सो ना, ये अभी मैंने निकाल के बताया था। और इसको हम लोग क्या एक और से रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो ये एस का दो फार्मूला और निकल के आता है। ये है कॉम्प्लेक्स पावर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड and VRMS square divided by Z conjugate, and one we have already know VRMS into IRMS conjugate। और एक चीज़, Z को हम क्या लिखते हैं, R plus JX। R is what, resistance, and X is reactance। So we can write Z at R plus JX। Now put this value in this one, so we can write complex power as आई आर एम एस स्क्वायर आर प्लस जे एक्स। ये फेजर से हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर में चेंज किया, तो इसे क्या आर प्लस जे एक्स, इसमें तो एंगल इंक्लूडेड होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। सो दिस विल आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इन प्लस जे इंटू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा ना। सो यहाँ से क्या मिल के आ रही है, यहाँ से भी हमें कॉम्प्लेक्स पावर की दो पार्ट मिल के आ रही है, एक कांस्टेंट और एक इमेजिनरी। एंड दिस कांस्टेंट पार्ट वी विल रिप्रेजेंट इट एज P एंड दिस इज Q। दिस इज नथिंग बट रियल और एक्टिव पावर एंड दिस इज रिएक्टिव पावर। सो हमने रियल पावर को दो टाइप से निकाला। एक क्या थी रियल पावर की वैल्यू, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस टू कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, और यहाँ से क्या निकल के आई, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। सो you can see that this P means active power depends on load's resistance। means जो P है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लोड के रेजिस्टेंस पे। and this Q depends on, means reactive power depends on load's reactance which is X, yes or no। और ये देखो यहाँ पे जो यूजफुल पावर होती है ना वो एक्टिव पावर होती है। मीन्स ये जो रिएक्टिव पावर होती है ना वो यूजफुल पावर नहीं होती, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अननेसेसरी पावर होती है। जो सिर्फ यूजफुल होती है वो क्या होती है, हमारी एक्टिव पावर होती है। फिर आप बोलोगे क्या कि इसे हम लोग हटा नहीं सकते, मीन्स रेक्टिफाई करके इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नो, वी कांट अवॉइड इट। व्हाई, सी this reactive power is introduced due to what, due to this energy storing element L and C, yes or no। ये L and C आया तभी तो ये हमारे पास रिएक्टेंस वाली केस आई थी, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस रहता तो ये टर्म ही नहीं आती। सो ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की वजह से हमारे पास ये रिएक्टिव पावर इंट्रोड्यूस हुई है। एंड वी नो दैट, और कहीं भी अगर बात हुई हमारी, मीन्स एसी हमने लिया सोर्स, और
मीन्स हमारे एल एंड सी एसी सर्किट में तो प्रेजेंट होगी, तो हम लोग रिएक्टिव पावर को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और देखो रिएक्टिव पावर का क्या, रिएक्टिव पावर क्या होती है? इट इज़ द मेजर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सोर्स एंड रिएक्टिव पार्ट ऑफ द लोड। और हम जो Q है उसे हम लोग वार से, इसकी जो यूनिट होती है वो वार होती है, मीन्स वोल्ट एम्पियर reactive. See, as we know that energy storage elements neither dissipate nor supply power, yes or no? But they will what? They will exchange power back and forth with the rest of the network. Means जब हमने देखा था, तो अगर एक साइकिल में देखा हमने तो क्या कर रहा था वो, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रही थी, सोर्स टू लोड जा रही थी हमारी पावर, और जिस ये थी दूसरी साइकिल थी उसमें क्या हो रही थी, लोड टू सोर्स जा रही थी। मीन्स ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, फिर वही सर्किट में जब नेगेटिव हो जाती है, साइनसॉइडल जब नेगेटिव मीन्स दिस नेगेटिव करवाता है, तो क्या हो जाता है, वो सर्किट में सर्कुलेट कर देता है, यस और नो? सो this is doing what, this energy storing element just exchange power back and forth with the rest of the network. In the same way, the reactive power is being transferred back and forth between the load and the source. Okay, so you will ask then why we need reactive power, means हम लोग तो इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, सो दिस इज़ अननेसेसरी। एंड रिएक्टिव पावर का हमें बिल भी पे करना पड़ता है, क्योंकि मीन्स जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है तो हम लोग एक्टिव प्लस रिएक्टिव पावर दोनों का बिल पे करते हैं। ओके, सो देखो रिएक्टिव पावर ठीक है यूजलेस है, लेकिन इसकी कुछ मतलब इसकी कुछ नीड है हमारे पास। सो फर्स्ट write down the need of reactive power, means the uses of reactive power. Certain uses के uses of Q, or you can write it that reactive power. See, this reactive power is useful in transmitting or boosting the active power in transmission lines with less losses. मीन्स जब हम लोग पावर को एक्टिव पावर को जो ट्रांसमिट करते हैं यहाँ से सोर्स से, मीन्स लोड में जो हम लोग घरों में हमारे आता है, तो बीच में जो होती है वो लॉसेस, ये जो होती है वो यूजफुल इन ट्रांसमिशन होती है, मीन्स ट्रांसमिशन करने में हमारी ये जो होती है क्यू जो होती है वो यूज़फुल होती है, स्मूथ ट्रांसमिशन होता है हमारा इसकी वजह से एक्टिव पावर का, और जो लॉसेस जो होती है ना वो कम होती है। सेकेंड पॉइंट इज सी, reactive power is responsible for flux production. मीन्स देखो अगर फ्लक्स एक्टिव पावर होती है ना वो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करती है, रिएक्टिव पावर इज़ द ओनली पावर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फ्लक्स प्रोडक्शन। अगर फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगी तो फ्लक्स नहीं होगा, और फ्लक्स नहीं होगा तो मशीन में रोटेशन नहीं होगा। सो इस चीज़ के लिए भी हमारी रिएक्टिव पावर जो होती है वो बहुत यूज़फुल होती है। एंड थर्ड, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, इससे जो हमारा पावर फैक्टर होता है ना वो इम्प्रूव होता है। देखो पावर फैक्टर है ना, हम लोग हमारी जो डिज़ायरेबल पावर होती है वो नियरली इक्वल्स टू 1 होती है, एग्जैक्ट 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि प्योरली चीज़ कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने अभी बताया था अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगी तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगी। चलो प्योरली रेजिस्टिव चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वायर में कुछ ना कुछ, अगर एक सिंपल भी वायर लोगे ना, अगर मैंने एक वायर दे दी आपको और मैंने पूछा इसका इंडक्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे इंडक्टेंस एल की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 0। नहीं, एल की वैल्यू 0 नहीं होती है, वो कुछ ना बहुत ही कम होगी, लेकिन एल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो देखो पावर फैक्टर 1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग नियरली इक्वल्स टू 1 करते हैं। तो ये जो क्यू होती है ना वो क्या करती है, पावर फैक्टर को नियरली इक्वल्स टू 1 करने में
मदद करती है, मीन्स पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती है। और देखो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी प्रेफर लो रिएक्टिव पावर। कॉस फाई क्या होता है हमारे पास, पी वाई एस, एंड पी एस इज़ व्हाट, पी प्लस क्यू जे। तो हम क्यू को ना कम रखते हैं ताकि कॉस फाई जो, हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं ताकि हमारी पावर फैक्टर वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। एंड फोर्थ वन इज़ वोल्टेज कंट्रोल। सी voltage control, in our country 5 to 6% of voltage fluctuation is permitted, means जो हमारे पास 220 और 240 वोल्ट के बीच में जो वोल्टेज आती है ना, मीन्स जो ये आती है, हम जो रेंज ये डिसाइड करते हैं 230 वोल्ट आती है। अब इसमें 220 से 240 भी हो सकती है, मीन्स ये जो 230 वोल्ट है ना, इसमें हम लोग 5% का फ्लक्चुएशन परमिट करते हैं इंडिया में। 5% मतलब इससे कम हो सकती है और 5% इससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है। सो ये वोल्टेज कंट्रोल करने में ये जो रिएक्टिव पावर होती है वो बहुत ही यूज़फुल होती है। ओके, अगर आप एग्ज़ाम्पल देखना चाहो तो देख सकते हो कि अगर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक लिया, तो कोल्ड ड्रिंक जब आप किसी ग्लास में डालते हो तो क्या होता है, नीचे तो कोल्ड ड्रिंक रहती है और लेकिन ऊपर में बबल्स रहते हैं नहीं। तो ऊपर में जो बबल्स रहते हैं ये तो आप नहीं ना, इसका तो कोई काम नहीं होता है, कुछ देर बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप जो पे करते हो, ये जब बबल्स हटते हैं तो कोल्ड ड्रिंक तो इतना ही रहता है, पूरी ग्लास भर जाती है आधी, मतलब मीन्स इतनी ग्लास मानो बबल्स से भर गई और इतना ही कोल्ड ड्रिंक मिला। लेकिन हम लोग जब पे करते हैं तो 1 ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक के लिए पे करते हैं कि नहीं। तो यही हो गई, ये जो हो गई हमारी, ये जो वाटर हुआ वो एक्टिव पावर हो गया और ये जो हो गया रिएक्टिव पावर। मीन्स ये ईजी वे में बस एक तरह से समझाने के लिए है कि रिएक्टिव पावर, इससे बस टेस्ट अच्छा आ जाता है हमारी बबल्स की वजह से, इसे हम लोग बबल्स को अवॉइड नहीं कर सकते। दिस इज़ द एग्जाम्पल, इसे आप ऐसे दिमाग में मत बिठा लेना कुछ भी। ओके, so that's it for today's video. So in the next lecture we will start what RC circuit, RL circuit, RC circuit, and after that RLC circuit parallel series. Okay, so if you like this video, please do comment, share and subscribe and hit the bell icon.